Good morning, my dear student. Today we will continue your class 11th history, chapter 10, displacing indigenous people. In this chapter, we had already discussed about that the condition of native people of the America. And in my previous video, I taught you about the Australians aborigine and their conditions. What happened with them? Which type of behave that was done by the outsider settlers. These are all we have read in our previous video. Today we will discuss the next topic, the wind of change. The wind of change, the topic wind of change. This topic you have also read in America, when we read the topic, the America and their native peoples, the wind of change happened there. In Australia we will also read that wind of change. I mean to say that wind of change, it means कि जो परिस्थितियां बदली, जो नेटिव पीपल के लोगों के बारे में आई, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. We will discuss on that. Okay, in 18 I think we have discussed little bit about that topics. हमने इस पे बात भी किया था. Where if you will remember that I told you and I taught you that the anthropologist W.E.H. Steiner, they entitled the Great Australian Silence, their book. In the Great Australian Silence, they ask question to historians that why the I mean to say that native peoples, the aborigine of the Australian people, not explained by them in history. Why the historians not studied on them? क्यों उन पे काम नहीं किया गया? और फिर मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा, if you remember that कि why were not we told that book was wrote by Henry Reynolds. Henry Reynolds articulated in the powerful books, and he also questioned on the new historians that why they were not in the part of the Australian history. क्यों वो लोग इतिहास में, ऑस्ट्रेलियन इतिहास में उसके पार्ट क्यों नहीं बने? Even they have what the very good art and craft. They were cultured. Their culture was totally different from the, I mean to say that the modern peoples. Even if they were not the part of the syllabus of the education in Australia, they were not part of in history also. वो इतिहास का कोई अंग नहीं बने. इन चीज़ों पे क्वेश्चन उठाते हुए कहते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं W.E.H. Rayner in 1968 was anthropologist. He entitled the book The Great Australian Silence, the silence of the historian about the aborigine. From the 1917, as was the happening in the North America, there was an emergence of what understand the natives, not the anthropological curiosity, but the communities with the distinct culture, unique ways, the curiosity, I mean to say that understanding nature and climate with a sense of community. What? Here the matter totally different. The aborigine, they were not, अब केवल वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब नृतत्वशास्त्री विज्ञान के लिए ही नहीं थे. अब उनका अध्ययन इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि उन लोगों के पास क्या थी, वो लोग जो एबोरिजिन थे, अब वो लोग अपने जो विस्तार नॉलेज था उनको जलवायु का, यूनिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड क्लाइमेट, distinct cultures, and they have good art and craft man. वो एक अच्छे क्या थे, आर्ट एंड क्राफ्ट मैन भी थे, डिस्टिंक्ट कल्चर थी उनके पास. इसके लिए अब उन्हें अध्ययन किया जा रहा था विथ ए सेंस ऑफ द कम्युनिटी विच हैड वास्ट बॉडीज ऑफ स्टोरीज, टेक्सटाइल एंड पेंटिंग्स एंड कार्विंग स्किल्स which should be understood and recorded. That is what the respected underlying it all was the urgent questions which Henry Reynolds later articulated in the powerful books Why Were Not We Told. The
condemned the practices of writing Australian history as thought it had been begun to Captain Cook's discovery. Since the universities department, since universities department have been instituted to study native cultures, galleries of the natives' art, and have been added to art galleries, the museums, cultures galleries, and the museums have been enlarged to incorporate diagrams and the imaginative design rooms explaining native culture, and natives have been begun written their own life histories. Because of the native culture had remained ignored by this time, much of such culture would have been forgotten from the 1974. The multiculturalism has been official policy in Australia which gave respect to native cultures and to different culture to the migrants from the Europe and Asia. It is very strange matter with Australian peoples, native peoples, that they were the part of the history, but they never explained, they never studied by the historians. That's why the Henry Reynolds asked question to historian. He condemned the Australian historians that why were not we told, क्यों वो नहीं पढ़ाए गए इतिहास में. और फिर इसके बाद बदलाव आया. सिंस 19th सेंचुरी तक आते 19वीं सदी तक आते अब वहां पे क्या किया गया, वहां पे बड़े पैमाने पे उनके लिए काम किया गया. उसके बाद इन आलोचनाओं के बाद मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए मूल निवासी नेटिव पीपुल्स के जो स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट बनेंगे, बहुत सारी गैलरीज लगाई गई, आर्ट गैलरीज, फोक आर्ट को प्रमोट किया गया. कहता है कि सिंस देन यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड टू स्टडी सेंटर्स, स्टडी नेटिव कल्चर्स, गैलरीज of the native art have been added to art galleries. Museums have been enlarged to incorporate dioramas and imaginatively designed rooms explain native culture, and native have begun writing their own life history. ये जो बड़े बड़े अब लोगों के मन में उनके इतिहास को जानने की भावना जागृत हुई. अब बड़े बड़े आर्ट गैलरी लगाए गए, देसी कलाओं की जो दीर्घाएं शामिल की गई, उसमें संग्रहालय में उनके लिए जगह दी गई. मूल निवासियों ने अपने जीवन, अपने इतिहास को लिखना शुरू किया, और यह सब एक अद्भुत प्रयास है. नो डाउट दीज आर ऑल दैट इज द वेरी द एडमायरेबल स्टेप दैट वाज टेकन बाय द न्यू जनरेशंस. जो लोग ये नए काम कर रहे थे, नो डाउट क्या था ये दिस बिगेन टू राइट देयर ओन हिस्ट्रीज. दिस हैज बीन ए वंडरफुल एफर्ट. इट हैज आल्सो ऑकर्ड एट द क्रिटिकल टाइम, because if the native cultures had remained ignored by this time, much of such cultures would have been forgotten. तो अगर आज उनके इतिहास को नहीं पढ़ा जाएगा तो एक लंबे समय के बाद लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे, लोग उन्हें भूल जाएंगे. कहता है कि मूल निवासियों के अपने जीवन जब उन्होंने लिखना शुरू किया, ये उनका एक बहुत अच्छा प्रयास माना गया, और ये प्रयास एक समय रहते शुरू हो गया. अगर आज नेटिव कल्चर की अनदेखी जारी रहे तो वो समय दूर नहीं जब इनकी पूरी इतिहास को विस्मृत कर दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा. और ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण थी कि इन लोगों ने इसे स्टार्ट कर दिया था. 1974 में जब बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही है, उसमें मूल निवासियों के संस्कृति और यूरोप तथा एशिया के
जो इमिग्रेंट्स थे, बहुत सारे लोग थे, उन सभी के कल्चर के सम्मान की बात कही गई है। It means from the 1974, the multiculturalism has been official policy in Australia, which gave equal respect to the native culture and to the different culture of the immigrants from the Europe and Asia. From the 1970s, as the term human right began to be heard at the meetings of the UNO and other international agencies, the Australian public realized with dismay that in contrast to the USA, Canada and New Zealand, Australia had no treaties with the native formalizing the takeover of the land by the Europeans. The government had also termed the land of Australia Terra Nullius. The word Terra Nullius Terra Nullius, that is belonging to nobody. It means the Australian people. Terra Nullius, it means that is belonging कहता है कि इसका मतलब टेरा न्यूलिस का हुआ कि जो किसी से संबंधित नहीं है, नोबडी, that is belonging nobody, that is called terra nullius. The outsiders, the settlers, they felt that Australian land, that is terra nullius, no one have right, that is belonging nobody, so that's why we have legal right to capture their land. That's why they uses that word terra nullius. किसको, किसके लिए? ऑस्ट्रेलियन पूरी जमीन के लिए। जब बाहर से आए लोग 1917 के डिकेड्स तक, जो कई सारे शब्द यहाँ पे, कई सारे वर्ड सुनाई दिए, वो वर्ड थे यूएनए में लिखा गया क्या, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। और जब ह्यूमन राइट्स की बात आई, लोगों ने इसको सुना यूएन के सभाओं में, तब ऑस्ट्रेलिया की जो जनता थी उनको एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया जो लैंड एक्वायर था, जो लैंड कैप्चर किए थे ये लोग, वो टोटली क्या थी, इलीगल थी। और फिर यूरोपीय लोगों के लिए जो भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा बॉन्ड नहीं किया गया था, जैसा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में किया गया, जैसा कि अमेरिका और कनाडा में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई बॉन्ड नेटिव्स के साथ नहीं हुए थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नेटिव्स के साथ नहीं हुए थे। तब यहाँ पे एक प्रश्न उठा लोगों के मन में कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हुआ, और इसके पीछे जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, टेरा न्यूलिस। इस वर्ड को उन्होंने कहा कि ये टेरा न्यूलिस है, और ये टेरा न्यूलिस का मतलब होता है कि ऐसी जमीन जो किसी की ना हो, कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया था। इसके लिए जो सरकार थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलिस बताया। टेरा न्यूलिस, अगेन आई एम इन्फॉर्म यू कि टेरा न्यूलिस मतलब दैट इज बिलोंगिंग नोबडी, ये किसी से संबंधित नहीं है, ये ऐसी जमीन थी। हाउ स्ट्रेंज दैट नेटिव पीपल लिव्ड ऑन देयर लैंड, दे वर किक्ड आउट, दे वर थ्रू आउट ऑन देयर लैंड एंड दे व्हाट, दे रिकॉग्नाइज देयर लैंड एज ए टेरा न्यूलिस। उनकी जमीनों को ये टेरा न्यूलिस कह रहे थे। इट इज द वेरी स्ट्रेंज विद द नेटिव पीपल। और फिर इसके अलावा वहां पे आदिवासी जो रिश्तेदारों से छीने गए, जो मिश्रित रक्त वाले मूल निवासी, उनके बच्चों का एक लंबा यंत्रणाप इतिहास था, जिसे उस पर उनका कोई मतलब नहीं था, कोई ध्यान नहीं था। देयर वाज आल्सो ए लॉन्ग द एक्नॉलेजिंग हिस्ट्री ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ द मिक्स्ड ब्लड native Europeans being forcibly captured and separated from their native relatives.
उनके लिए कोई किसी ने नहीं सोचा. व्हाट हैपेंड विद देम, क्या हुआ उनके साथ. एंड एजिटेशंस अराउंड दोज क्वेश्चंस लेड टू द इंक्वायरीज एंड टू इंपॉर्टेंट डिसीजन. वन, क्या हुआ इसके बाद कि इन सवालों पर खड़े हुए जो आंदोलन चले, जो उनकी जांच की गई, तो दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, दो डिसीजंस लिए गए. पहला कि इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का जमीन के साथ जो उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है, इसका आदर किया जाना चाहिए. और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन जो गोरे लोग हैं, उनके रंग बिरंग लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया, उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए. इट मीन्स द एजिटेशंस अराउंड दीज क्वेश्चंस लेड टू द इंक्वायरीज एंड टू important decisions. One, they recognized that the natives had strong historic bonds with the land which was sacred to them and which should be respected. Second, or two, that while past act could not be undone, there should be a public apology for the injustice done to children in an attempt to keep white and colored people apart. दो बातें कही गई और वहां के लोगों से पूरी बात करने का प्रयास किया गया. माफी मांगेंगे. ये सब कैसे हो रहा था? These are all change introduced in Australia because of the awareness. If they're not aware, I mean to say that, and not only the awareness, but also the new generation felt that कि जो नेटिव्स हैं उनके साथ अन्याय हुआ और उनके अन्याय को अलग करना होगा. उनके अन्याय के लिए जो चीजें हुई उन्हें ठीक करना पड़ेगा. दैट्स वाई वी हैव रीड दैट वर्ड कि बहुत सारे आर्ट गैलरी लगाए गए नेटिव कल्चर को एक्सप्लेन करने के लिए. बहुत सारी जो आपने देखा म्यूजियम में अलग जगह उनको दिया गया, इमेजनरी हट्स बनाए गए जिसमें नेटिव पीपुल रहते थे. इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था. वो सारी चीजें इन चीजों को बताना चाह रहे थे. क्यों? क्योंकि अब लोगों को लगने लगा था कि रियली उनके साथ जो नेटिव्स थे उनके साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ. और तभी उनको क्या किया गया? उनके कल्चर को स्थान दिया गया. यूनिवर्सिटीज के वेरियस डिपार्टमेंट में कई सारे संस्थान खोले गए. द वेरियस डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड टू स्टडी नेटिव कल्चर्स. Galleries of the native art have been added to art galleries. Museums have been enlarged to incorporate the dioramas, the image native designed. That is the very important things which you can easily understand. This has been wonderful effort, no doubt. But when it was happening in 9th century. जब सब कुछ हो चुका था, परिस्थितियां पूरी बदल चुकी थी, तब ये घटनाएं हो रही थी. लेकिन फिर भी उन लोगों ने समय रहते नेटिव्स की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में, नेटिव्स की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस चैप्टर में व्हाट वी रीड इन दिस चैप्टर, वी हैव रीड अबाउट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द नेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड नेटिव्स इन अमेरिका. The American natives they called Red Indians and Australian natives they called Aborigine. Both they faced similar conditions. I mean to say that natives they faced similar conditions. They were exploited by outsiders who reached on the Europe or the other countries. They exploited them. They not only exploited them, but they also exploited their resources, natural resources, human resources. These are all exploited by them. It is the very strange matter. But at last we have seen the topic wind of change. In this topic we read that which type of changes
introduced in that countries. The changes was in favor of the natives. The some rights that was given by the particular government, particular nation government, उस देश की सरकार ने उन्हें कुछ अधिकार दिए और वो उनके अधिकारों के तहत वो काम किए। इस तरीके से हम लोग आपका ये चैप्टर आज यही खत्म होता है। इट मीन्स इंडिजिनस पीपल चैप्टर टुडे वी हैव कंप्लीटेड। वी विल रीड नेक्स्ट चैप्टर, I think path to modernization, chapter 11. Chapter 11 is the very interesting chapter. In this chapter we try to understand about the history of the Japan and China and how the Japan and China became the prosperous country. कैसे ये prosperous country बने, किस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चीज़ें बदलें और किस तरीके से वहाँ पे monarchical form to डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट टू मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चेंज हुई। डोमियो कौन थे, सामुराई क्या है, किंग का क्या रोल है, दीज आर ऑल वी विल डिस्कस योर नेक्स्ट चैप्टर। योर चैप्टर नेक्स्ट इज द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। इफ विल रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ऑथर वांट टू इन्फॉर्म यू द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। द चैप्टर The East Asia and the beginning of the 19th century was dominated by China. The Qing dynasty had to a long traditions seemed the secure in its power, while Japan, a small islands country, seemed to be locked in isolations. And without a few decades, China was thrown into the turmoil, unable to face the colonial challenge. The imperial government lost political control, was unable to reform effectively, and the country was what? The country was convulsed by the civil war. Japan, on the other hand, was successful in the building a modern nation state, creating an industrial economy and even establishing a colonial empire. By the incorporating Taiwan 1895 and the Korea in 1910, it defeated China, the land that had been the source of its culture and ideals in 1894, and the Russia, the Europeans' power, in 1905. The Chinese reacted slowly and faced the immense difficult as they sought to what? Redefine their traditions to cope with the modern world and to rebuild their national strength and became free from the Western and Japanese control. They found that they could achieve both objectives of the removing inequalities and rebuilding their country. That is a very important thing. If you will see the whole scenario of the China, then you can understand that China that was ruled by Japanese during some times. China also defeated by North Korea and Japan. चाइना और 19वीं सदी की शुरुआत में चीन की जो पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व थी, 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो चाइना की ईस्ट एशिया के ऊपर पूरा कंट्रोल था, एक लंबी परंपरा के कारण, एक लंबी परंपरा जो वारिस थे, जिनको क्विंग डायनेस्टी कहते थे, जिसे छिंग राजवंश भी कहा जाता था, उनके कारण उनकी सत्ता जान पड़ती है। जबकि एक छोटा सा द्वीप जापान अलग अलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था, इसके बावजूद भी जापान कुछ ही दशकों के भीतर अशांति और गिरफ्त में आ गया। जापान छोटे छोटे धड़ों में बंटा था, फिर भी जापान अपने को सशक्त बनाए रखा। लेकिन चाइना जो बड़ा था वो कुछ ही समय के भीतर
बहुत सारे अनसेटिस्फैक्शन, रिवोल्ट और छोटे छोटे विद्रोहों में घिर गया। कई सारी उसे चीन की अशांति की गिरफ्त में आ गया। औपनिवेशिक चुनौती का सामना उसे नहीं करना पाया, जो चिंग राजवंश थे नहीं कर पाया, और चीन पूरी तरीके से क्या गया, दूसरों के कब्जे में आ गया। वहां का जो राजवंश था, क्विंग डायनेस्टीज, राजनीतिक नियंत्रण उसके हाथ से जाता रहा। जो उसने सुधार किए वो सुधार भी पूरी तरीके से सफल नहीं हुए और देश सिविल वार के लपटों में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण में औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी तेजी से बढ़ रही थी। यहां तक कि ताइवान 1895 तक, कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औद्योगिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति को, अपने आदर्शों के स्रोत भूमि चीन की 1894 में हराया और 95 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में भी कामयाब रहा। It means Japan, that was a very little bit country. It was made from the various islands. But on the basis of their economical development, he changed their what? The situation in world. जापान ने कोरिया को जीता। जापान ने जो उसके नजदीक देश थे उन पे अपना प्रभुत्व जमाया। जापान का प्रभाव ताइवान पे, जापान का प्रभाव चीन के ऊपर पड़ा। हमने देखा कि जापान प्रभावशाली रूप से रूस को भी अपने प्रभाव में ले रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? एक तरफ चीन में जो क्विंग डायनेस्टी थी, चीन की क्विंग डायनेस्टी अपने सुधारों को पूरी तरीके से लागू कर पाने में असफल हो रही थी। चीन बड़ा राज्य होने के बाद भी आंतरिक विद्रोहों से गिर गया। चीन में जो डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी, उसने जो कॉलोनियल उसके सामने चैलेंज थे, जो औपनिवेशिक सत्ता उसकी तरफ अटैक कर रही थी, वो उनसे बच नहीं सका या अपने देश को बचा नहीं सका। इन सारी चीजों से चीन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट जस्ट अपोजिट जापान बिकेम वेरी पावरफुल कंट्री। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ द पावरफुल कंट्री। उन्हें अपने को पावरफुल कंट्री के रूप में प्रूव किया। उसने न केवल अपने देश की में आर्थिक उन्नति की, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, बल्कि उसने स्ट्रेटेजिकल बेस से भी कई सारे क्षेत्रों को अपने राज्य का हिस्सा बनाया। चीन को भी उसने कैप्चर किया, रूस पे भी अपना प्रभाव दिखाया, ताइवान और कोरिया भी उसके अधिकार में आ गए। जो एक छोटे से देश ने इतना बड़ा विस्तार किया। और फिर चीनियों की जो प्रतिक्रिया इसके अगेंस्ट जापानियों की बहुत तेज नहीं रही, बहुत धीरे रही। उन्हें कई सारी कठिनाइयां आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्हें परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया और साथ ही राष्ट्र की शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की चाइना ने। चाइना में जो विकास हुआ धीरे धीरे हुआ। चाइना में अपने को फ्री कराने की जो बात आई वो भी धीरे धीरे हुई, लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्रता के प्रति अवेयरनेस उनके अंदर आने लगी। अब वो अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने पाया कि जो हमारे बीच इनइक्वलिटीज है, हमारे ट्रेडिशंस में, उनको दूर किया जाए। वो अपने को जापानी नियंत्रण से भी मुक्त रखना चाहते थे और कुछ नया इनोवेशंस भी अपने अंदर करना चाहते थे। और फिर 1949 चीनी साम्यवादी या माओइस्ट या जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने सिविल वार में जीत हासिल की और 1917 के डिकेड्स के आखिरी तक जो चीनी नेता थे उन्हें लगने लगा कि आइडियलिज्म के थ्रू इस व्यवस्था आर्थिक विकास में बाधा डाल रही हैं। ये कम्युनिज्म, ये जो कम्युनिस्ट अप्रोच है, इट मीन्स 1970 के डिकेड्स तक आते आते कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार पूरे चाइना में स्टेब्लिश हो चुकी थी। कम्युनिस्ट अपनी विचारधारा के थ्रू चीन का विकास कर रहे थे, लेकिन 1917 के पास आते आते चीन को लगने लगा कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो चीन के विकास में कहीं न कहीं बाधक हो रही है। और फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने इस पूरे चीजों को, इस विचारधारात्मक व्यवस्था को, आर्थिक वृद्धि के विकास में जो बाधा डाल रही थी, उस व्यवस्था में व्यापक सुधार किए और अपने यहाँ कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, ओपन मार्केट शुरू की। और फिर चाइना एक नए स्वरूप में उभर के सामने आया। चाइना का विकास दिखाई देता है। और फिर इसी तरीके से जापान तो पहले से ही डेवलप था। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया था, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया। वो इंपीरियल थॉट्स की
वशीभूत होके क्या करने लगा, वो युद्ध की तरफ हो गया। 1954 1945 जो आंग्ल अमेरिकी जो वार हुए, उसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें जापान की हार हुई, और तब अब यहीं से जापान के एम्बिशंस पे कंट्रोल हुआ। अमेरिकी आधिपत्य के साथ जापान में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1917 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने का एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन के उभरा। जब जापान पे एटम बम गिरा दिए गए, जापान पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, फिर भी विद इन 25 ईयर्स जापान ने तेजी से विकास किया और अपने को फिर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में ले आया। दीज आर ऑल वी विल रीड योर नेक्स्ट चैप्टर, द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।